السلام علیکم ویورز، ریئیکشن ولاگز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید اقبال اور میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو۔ اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں، دوستوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو، دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ ویڈیو کے اندر ہم مسجد قرطبہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس کا URL آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اندلس میں اسلامی حکومت کی داستان 8 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا جب جہالت کے اندھیروں میں غوطے کھا رہی تھی، اس وقت کا مہذب ترین معاشرہ یعنی یورپ جب علم و عالم سے بے بہرا تھا، تب اندلس میں علم کے نئے باب کھل رہے تھے۔ سینکڑوں کتب خانے جن میں لاکھوں کتب موجود تھی، قرطبہ میں موجود تھے۔ طب، جراحت، کیمیا، حدیث، فقہ، ریاضی اور آج کی جدید سائنس کے تمام علوم کی بنیاد اندلس میں ڈالی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد قرطبہ کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا، ایک ایسی تاریخ کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی آنکھیں نم کیے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ اس وقت کی معلوم دنیا میں اندلس علم کے حوالے سے سب سے زیادہ زرخیز خطہ مانا جاتا تھا۔ دنیا جہان سے تشنگان علم یہاں پہنچتے تھے، اور پھر یہاں کوئی ایک تہذیب کے افراد نہیں بلکہ متعدد قسم کے افراد تھے جن کو قوت و مساوات کا سبق مسلمانوں نے پڑھایا، اور وہ ایک ہو گئے کہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرے۔ 800 برس میں اسلامی حکومت نے عروج و زوال کے کئی سفر طے کیے، اور پھر صفحہ اندلس سے ایسے مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اندلس کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج وہاں موجود اسلامی فن تعمیر کے شاہکار ہی ہیں جن کی موجودگی اغیار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو قوم آج خزاں کا شکار ہے اس کی بہار بہت شاندار تھی۔ جامعہ قرطبہ کی بات کی جائے تو جامعہ قرطبہ کی تعمیر عبد الرحمن الداخل نے 8ویں صدی کے اواخر میں شروع کی۔ وادی الکبیر میں دریا کے پل پر اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں سینٹ ونسٹنٹ کا گرجا موجود تھا۔ اس کا کچھ حصہ تو پہلے ہی مسلمان مسجد کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمانوں نے باقی گرجا گھر حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تمام تر بہتر برتاؤ کے باوجود بھی عیسائی اس پر تیار نہ ہوئے۔ عبد الرحمن الداخل نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے باقی گرجا بھی عیسائیوں سے خرید لیا۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو امیر عبد الرحمن الداخل نے خود کام کی نگرانی کی۔ تعمیر میں ذوق و شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی شاہکار مسجد صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں تیار ہوئی۔ اس وقت جامعہ قرطبہ کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ دیواریں اس قدر بلند تھیں کہ دور سے شہر کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی، اور یوں ہوا اور روشنی بہترین نکاسی کے ذریعے سے ممکن ہوتی رہتی تھی۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ ان ستونوں کی کثرت سے مسجد میں خود بخود راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئیں جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ بنی۔ ہر دوسری محراب کو پہلی محراب کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ وہ چھت سے جا ملی۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے، جن میں سے وہ ستارے جو اندرونی دالان میں نصب کیے گئے خالصتاً چاندی کے تھے۔ مرکزی ہال میں ایک بہت بڑا جھاڑ نصب کیا گیا تھا جن میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ مسجد میں نصب ستون زیادہ تر اشبیلیہ، اربونا اور کرتاجنا سے منگوائے گئے، لیکن وہ مستقبل کی ضروریات کے لیے تعداد میں بہت کم تھے۔ لہٰذا عبد الرحمن الناصر نے بعد میں اندلسی سنگ مرمر کو ترشوا کر ستون تیار کروائے۔ سنگ مرمر ترشوانے کے بعد ان کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ یہ سارا کام نہایت نفاست کے ساتھ انجام دیا گیا۔ مجموعی طور پر ستونوں کی تعداد 1400 تھی۔ مسجد میں شروع میں 9 دروازے نصب کیے گئے جو بعد میں 21 تک پہنچ گئے۔ حشام اول نے مسجد میں ایک مینار تعمیر کروایا جس پر جانے کے لیے ایک زینہ موجود تھا۔ یہ مینار بعد میں ایک زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بعد میں عبد الرحمن الناصر نے اس مینار کی جگہ نیا مینار تعمیر کروایا جس پر جانے کے لیے 2 زینے بنائے گئے۔ اس مینار پر ایک کلش بنایا گیا جس کی شکل 3 سیبوں سے ملتی تھی۔ ان میں سے ایک سیب چاندی، باقی دونوں سونے کے تھے۔
सेबों के ऊपर सोसन का एक फूल बनाया गया जिस पर एक सोने का अनार बनाया गया। बाज रिवायात के मुताबिक इस मीनार की ऊंचाई 72 हाथ थी और इसी मीनार से मुअज्जन अजान देता था। मस्जिद में खास देखने की चीज वहां बनाया गया मिंबर था। साथ ही मस्जिद के अंदर मौजूद मेहराब भी मस्जिद की खूबसूरती में बहुत इजाफा करता था। तमाम सतूनों पर जैसे पहले बयान हुआ दोहरी मेहराबें नस्ब थीं और हर सतून ऐसा लगता था जैसे खजूर का दरख्त हो। सतून खजूर के तने की मानद था जबकि मेहराबें खजूर की टहनियों की मानद नजर आती थी। मिंबर के लिए जिस संगमरमर का इस्तेमाल हुआ वो दूध से ज्यादा सफेद और निहायत उजला था। सामने की जानिब कौस की शक्ल में एक मेहराब बनाई गई जिसके दोनों अतराफ दो दो सतून थे जिनमें एक सुर्ख और एक नीला था। किबला की दीवार के साथ जो दरवाजा साबात यानी कसरे खिलाफत की गुजरगाह की जानिब मौजूद था वो खुशबूदार लकड़ी के 36,000 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए सोने और चांदी के कील इस्तेमाल किए गए। मस्जिद में रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले चिरागों की दुरुस्त तादाद का कोई अंदाजा नहीं। एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 7,500 से ज्यादा थी। रोशनियों का इंतजाम इस कदर बेहतर था कि रात के वक्त भी दिन का गुमान होता था। 3.5 मन मोम और 300 मन तेल साल भर में इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद एक खूबसूरत शाहकार थी। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा लें कि वहां नसरानियों की मौजूदगी के बावजूद कभी कलीसा बनाने की हिमायत नहीं की गई। नसरानी कहते थे कि अगर कलीसा बनाया गया तो मस्जिद का हुस्न खराब होकर रह जाएगा। बाद में आर्च बिशप ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए वहां कलीसा की तामीर का हुक्म दिया। तामीर मुकम्मल होने के बाद उसने जब मस्जिद की सैर की तो तासुब के साथ कहने लगा कि अगर मुझे मालूम होता कि मस्जिद इतनी हसीन है तो कभी कलीसा की तामीर की इजाजत न देता। ये रिवायत आज भी करतबा के म्यूनिसिपल हॉल में मौजूद है। आज 800 बरस बीत गए और बकौल इकबाल आह कि सदियों से है तेरी फजा बेआज़ां, वहां आज तक अल्लाह अकबर की सदा नहीं गूंजी। वो मीनार और उसका बुर्ज अब भी किसी मुअज्जन का इंतजार करते हैं। ये तब की बात है जब सुल्तान सऊद ने हस्पानिया का सरकारी दौरा किया। प्रोटोकॉल में मौजूद अफसरान से नमाज की इजाजत चाही तो उन्होंने माजरत की कि मस्जिद अब कलीसा में तब्दील हो चुकी है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने जवाब दिया, मैं उस रसूल की उम्मत से हूँ जिसने नसरानियों के वफ्द को मस्जिद नबवी में इबादत करने की इजाजत दी और तुम मुझे अपनी मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकते हो। फिर सुल्तान ने अजान देने का हुक्म दिया और यूं सदियों बाद करतबा की फजा अल्लाह अकबर से गूंज उठी। मुसलमानों का ये मुतालबा सामने आया है। दिसंबर 2006 में स्पेन के मुसलमानों ने पोप बेनेडिक्ट से अपील की कि उन्हें मस्जिद कुर्तबा में इबादत की इजाजत दी जाए। स्पेन के इस्लामिक बोर्ड ने पोप के नाम खत में लिखा है कि स्पेन के कलीसा ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि मुकद्दस जगह की हवालगी की दरखास्त नहीं बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के साथ मिलकर इबादत करके मसीह दुनिया में एक अछूती मिसाल कायम करना चाहते हैं। दिसंबर 2006 के अवाइल में हस्पानवी कैथोलिक चर्च ने मुसलमानों को जामिया कुर्तबा में नमाज की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि हम इस इबादतगाह में मुश्तरका इबादत के लिए दीगर मज़ाहिब से बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मंसूर एक्सडीरो के मुताबिक कबर अजीज सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदरूनी हिस्से में पुरानी मस्जिद में मुसलमानों की नमाज की अदायगी से रोक दिया था। उन्होंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च के बाद अनासिर स्पेन में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खतरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा गिरजा दुनिया भर में मस्जिद के तौर पर जाना जाता है, उसे देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमान यहाँ आते हैं। बाद में ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि मुख्तलिफ लोग इस बात पर भी राजी हो गए कि इसे मस्जिद कलीसा का नाम दे दिया जाए और मस्जिद कलीसा का नाम भी दिया जाने लगा। दूसरी जानिब चंद एक सवालात और चंद एक बातें हैं जो कि मालूम करना है। एक बात तो ये मालूम करना है कि क्या मुसलमान अपने अहद रफ्ता को इस कदर भुला बैठे। दूसरी जानिब उंदलस में मुसलमानों के फनी तामीर का अरसा तकरीबन 700 बरस पर मुहित है, जो 8वीं सदी ईस्वी में जामिया कुर्तबा की तामीर शुरू किए जाने से लेकर 15वीं सदी ईस्वी में गरनाता के कसरे अलहमरा के मुकम्मल होने के जमाने पर फैला हुआ है। लेकिन इस जमाने को तमाम के तमाम लोग भुला बैठे हैं। इस दौरान सैकड़ों इमारात मसलन हमाम, महल्लात, मसाजिद, मकाबिर, दरसगाहें और पुल वगैरह तामीर हुए जिनकी अगर तफसील लिखी जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बन जाए। उंदलस में मुसलमानों के फ़न तामीर का मुताला करते हुए ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि यहाँ के मुसलमान हुक्मरान और अवाम की अक्सरियत पुरानी सकाफत की कोराना तकलीद के कायल नहीं थे, बल्कि यहाँ एक नई तहजीब ने जन्म लिया था और इसके नतीजे में एक नया मुआशरा वजूद में आया।
इस नई तहजीब के आसार इनकी तामीरात के हर अंदाज से झलकते नजर आते हैं। अरब फातहीन का ये कायदा रहा था कि वो जहाँ कहीं फातह बनकर जाते वहाँ की इलाकाई तहजीब व सकाफत को अपना लेते और अपनी तामीरात में उस इलाके की तर्ज तामीर के खदोखाल को शामिल कर लेते। चुनाचे सिंध से लेकर मराकश तक की तामीरात में अरबों की ये खसूसियत वाज़ेह तौर पर जलवागर नजर आती है, लेकिन उंदलस में उन्होंने यकसर एक नया रवैया अपनाया और एक ऐसी नई तर्ज तामीर के मौजद बने जिसमें अरब, हस्पानवी, सेहोनी और उंदलस की दीगर अकवाम की खसूसियात यकजा नजर आती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मस्जिद कुर्तबा की किस्मत संवर सकेगी और इसमें अजान की आवाज़ गूंज सकेगी? ये तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। जी, तो दोस्तों ये थी वीडियो। उंदलस के अंदर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है और 800 साल 8 सदियां एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। जिस तरह बर्र-ए-सगीर के अंदर मुसलमानों ने 1000 साल तक जो है वो हुकूमत की है, इसी तरह से उंदलस के अंदर भी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल अचानक से मुसलमानों को एक जगह पे हुकूमत है, मुसलमान जो है वो सल्तनत है उनकी वहाँ पे, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि सारी की सारी सल्तनत मुसलमानों की, और एक भी मुसलमान, एक भी इस्लाम का पैरोकार उस जगह पे नहीं बचा। इस तरह की साजिशें की गई मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन इससे अगला पहलू ये है कि मुसलमान जहाँ भी गए, इन्होंने अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो लोग जिस मज़हब के मानने वाले थे, किसी को फ़ोर्स नहीं किया गया कि आप लोग इस्लाम लाज़िमन कबूल करो। हाँ, उन्हें ये कहा गया कि हम आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, आप लोग हमें फ़िदिया दें, हम आप लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं और आप लोग जैसे चाहें अपने मज़हब को मनाएँ, आपको आज़ादी है। लेकिन जहाँ पर भी मुसलमानों के साथ इस तरह का अ, रवैया रखा गया कि मुसलमान पहले उस जगह पे सल्तनत है उनकी, उनका राज है वहाँ पे, लेकिन फिर अचानक से मुसलमानों पे ज़वाल आया और वो मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई वहाँ से, सल्तनत ख़त्म हुई वहाँ से, और उसके साथ ही जिसने वहाँ पे अपनी हुक्मरानी उजागर की, उसने मुसलमानों को इस्लाम से बिल्कुल बेदखल कर दिया। अब ये जो मस्जिद कुर्तबा है, ये 2 साल के अंदर जो है वो तामीर की गई। इतनी जल्दी से इस मस्जिद को तामीर करवाया गया। उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो मेहराब, जो मिंबर लगाया गया, वो 6 से 7 साल के अंदर तामीर किया गया। और इस मस्जिद को सुतूनों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन कुछ रवायात में है कि 1400 के करीब सतून है, कुछ रवायात में है कि 1070 के करीब सतून है इसके अंदर। तो और इसके अंदर जो लाइटिंग की गई, क्योंकि उस वक़्त बिजली तो थी नहीं, दिए जलाए जाते थे और रवायात के मुताबिक 300 मन सालाना मोम और ऑयल जो है वो जलाया जाता था इसके इंटीरियर को रोशन करने के लिए। तो इतनी मेहनत, और इसके अलावा फिर इसको सजाया गया सिर्फ़ और सिर्फ़ संगमरमर, सोना, चाँदी, और उसके बाद कीमती पत्थर जो थे उनको तराश के हाथी के दाँतों के साथ इसका जो मिंबर मेहराब था उसको बनाया गया। तो इतनी मुसलमानों ने मोहब्बत से इस मस्जिद को तामीर करवाया। लेकिन आज वही मस्जिद जो मुसलमानों ने, एक गिरजा था ना पहले, गिरजा था, वो मुसलमानों ने उसकी कीमत अदा की, उस गिरजे को खरीदा। आधा पहले ही मुसलमानों के पास था, आधे की इन्होंने कीमत अदा की, कीमत अदा करके वो गिरजा खरीद के उसको जो है वो कंप्लीट मस्जिद के अंदर चेंज किया और उसी को मस्जिद कुर्तबा का नाम दिया जाता है, जो कि 1500 ईस्वी में मुसलमानों से, जब मुसलमानों की हुकूमत उंदलस में ख़त्म हुई तो मुसलमानों से छीन गई, और उसके बाद से उन्होंने इस मस्जिद को अपने जो है वो चर्च में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, कलीसा बना दिया हुआ है उन्होंने इसको। तो ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि मुसलमानों ने काफ़ी दफ़ा पिटीशन भी की। उसके बाद क्योंकि अब भी मुसलमान यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी ये दिली ख्वाहिश है, बल्कि हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश है कि जो मस्जिद हैं वो हमारी हैं, वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर हमें इबादत करने का मौका मिलना चाहिए। जब मुसलमान जहाँ पर आज़ाद आबाद रहते हैं, अगर वो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को ये जगह देते हैं और उनको जो है वो इबादत की छूट देते हैं, तो फिर हमें हमारी मसाजिद में नमाज़ अदा करने की, अज़ान देने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो इस पर उनका रिएक्शन ये आया
کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں ابھی بھی یہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان ابھی بھی اگر ہم نے ان کو جگہ دے دی تو انہوں نے ہم سے مسجد قرطبہ چھین لینی ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پھر مسلمانوں پہ عروج آئے گا، اور پھر اندلس دوبارہ اسپین اندلس میں چینج ہوگا، اور پھر قرطبہ بحال ہوگی انشاءاللہ ضرور مسجد قرطبہ ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو آخری دین ہے اور آخر تک رہنے والا دین ہے۔ باقی سارے مذاہب جو ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اسلام کے سامنے ایک دن اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، اور وہی وہ دن ہوگا کہ جب یہ لوگ پچھتائیں گے کہ بے شک اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو سب پہ حاوی آنے والا ہے۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اگر مسلمان ہیں تو کتنی آپ کو درد پہنچا یہ ویڈیو سن کے، اور اگر آپ نان مسلم بھی ہیں تو پھر بھی ایز اے ریلیجیس پرسن آپ کو کیسا فیل ہوا کہ اگر آپ کی عبادت گاہ پہ کوئی اور قبضہ کر لے، اور پھر وہاں آپ کو 2 نفل یا آپ کو عبادت چند منٹ عبادت بھی نہ کرنے دے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔